ट्रेन नर्सेस एसोसिएशन ऑफ इंडिया का 78वां नेशनल कॉन्फ्रेंस जो कि 6 दिसंबर से 7 दिसंबर तक मोहाली क्लब में होगा, इससे संबंधित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और इसमें उन्होंने बताया कि इसमें 2000 से ज़्यादा डेलीगेट्स आएंगे और कॉन्फ्रेंस का थीम होगा लीडरशिप इन नर्सिंग, इंस्पायरिंग विजन, ड्राइविंग चेंज। जो नेशनल एसोसिएशन ऑफ प्रोफेशनल नर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, which was established in 1908. We are having the 78th national conference in the city of Chandigarh, which is held in the Mohali Club. Why? Because we usually conduct our national conference in every 2 years now. Earlier we used to have annual conferences. That's why it is 170 years old. The conference is only 78. Now, once in 2 years we have the national conference of the Trained Nurse Association of India. Actually, this association was established by 9 nurses from outside India, foreign nurses who were working in India at that time under the British India. Then it grew largely, and now we have more than 5 lakh members across India, and also we have a student nurse association which has more than 3 lakh members. We are established with the main objective of promoting dignity and welfare of nurses while ensuring quality nursing care to the people of this country. In that way, we take up initiatives to improve nursing education, nursing services, and also nurses' general welfare and remuneration. The 78th National Conference is scheduled for 6th and 7th December 2024. That is this Friday and Saturday in the Mohali Club. And the theme of the conference is Leadership in Nursing, Inspiring Vision, and Driving Change. We expect more than 2,000 delegates from all over the country to attend the conference. The inaugural function will be held on 6th morning at 11 a.m. Dr. Balbir Singh, Honorable Health Minister, are the chief guest, along with Dr. T. Dilip Kumar, who is the President of Indian Nursing Council, the statutory body of nursing in India, and Dr. Deepika Khaka, who is the Nursing Advisor to Government of India, which is the highest post of nursing in the country. We have national offices for a 4-year term, and actually our term is completing tomorrow. The election of that is on 5th December. Tomorrow we are having the election of new office bearers for the next 4-year term. The election will be held, but the handing over will be within on the completion of 30 days. So the actual election will be held for the new office bearers tomorrow. This conference will feature eminent speakers addressing nursing leadership challenges, innovation, and major challenges and innovations in healthcare advancements. Session on advanced clinical practices and emerging public health trends. A colorful parade showcasing the cultural diversity of 32 DNA branches, both union territories and states, will be held, symbolizing the unity in India's nursing community. Each state will be parading before the inaugural ceremony. Each state will, in their special attire, they will be making a parade to the state representing each state. There are 15 people from each state will be state government will be representing in this parade. And in the last 2-3 years, TNA has undertaken many groundbreaking initiatives aimed at professional growth, capacity building, and advocacy for the nursing fraternity. Some of this, especially this conference, during this 4-year term, we have the headquarters in New Delhi, TNA, in the Green Park, which was renovated, and it was dedicated to the memory of the 128 nurses who lost their life during the COVID pandemic. And we have also completed a COVID martyrs pillar in our Greater Noida campus in the memory of all the 128 clinical nurses who lost their life in the bedside
of the patients. We have lost other nurses who are teachers or professors, but we are not included now. Those people who are directly taken care of the COVID patients and lost their life during this heroic work. There's a tower being completed. It was inaugurated yesterday, and this is name of all these 128 COVID martyr nurses are enlisted on this tower. सर एक और क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन है। एक तो नर्सों के साथ आए दिन कई तरह की घटनाएं घटी हैं, तो उसकी सुरक्षा के लिए आपका एसोसिएशन क्या कर रहा है? और दूसरी बात, एक कानून के बारे में बात की जा रही थी कि नर्सों की सुरक्षा के लिए, जो फीमेल हॉस्पिटल स्टाफ है उनकी सुरक्षा के लिए किसी कानून की बात की जा रही थी, तो वो कानून की क्या बात हुई है? अब तक में क्या प्रोसेस है? What is being done for the safety of the nurses in the hospital? Yeah. Can I answer in English or other? She will answer in Hindi. But I'm not English only. Okay. So, like the recent Ardika Medical College mishap in West Bengal, the Kolkata, has exposed the lack of security for healthcare workers, especially women in the healthcare settings. So this is something which we were demanding, that to ensure the safety of health workers, especially nurses being more than 90% being women, those who take 24-hour duty, especially during odd hours of the night and early morning, they need to ensure safety of the healthcare workers. So for that, there has to be adequate security measures like CCTV cameras and security guards or police outposts, and also safe changing rooms or restrooms where they will be alone during the night. So this has been demanded, and also which have been reported to government and also the hospital authorities. Not all the institutions are still having the adequate facilities for this. Is a risk which we nurses are facing. Like whether there is a transport during night or rest during night or a duty during night, there is risk. We are continuously trying to improve the facilities by lobbying with the government, as well as also our administrators in nursing level also will talk to managements and trying to provide facilities. Almost all states now we have a common state-wise law to protect healthcare workers. But in some of the states it is not as powerful as it intended to. That was there is national demand for a common central law. Yeah. But that the Supreme Court also rejected, saying that it is already there in the states. And now we have come out with actually this came up in the light of this Ardika Medical College incident. Tata Trusts have expressed interest in as a women empowerment scheme. They have expressed interest in collaborating the DNA to build night shelters in hospital campus at the expense of the Tata Trust. They will mobilize funds from their funds and as well as from the maybe Federation of Indian Commerce and Commerce Chamber and FICCI and all those things. They are planning to that we are working on, so that they will build it fast and we will manage. We have to get to work out the details of it, but it's principally agreed that we will provide wherever there is shortage of facilities. We are trying to identify the places throughout India where these facilities are lacking. But there are two things we are especially focusing. One, night shelters, safe night shelters within the hospital campus itself. Maybe 10 o'clock their duty is getting over. They cannot go home. Maybe public transport, either we have a shared safe transport facilities arranging or night shelters for the nurses, women nurses after duty or just before duty. That is one thing which has come up. We are working on it. That will be definitely a groundbreaking initiative, because lack of funds is the main problem both for the government institutions and many private institutions to build a separate shelter. Hospital is usually crowded place where every inch matters for to spare for. When the separate building is there and if we can mobilize funds and we will be able to manage it, TNA will manage it for the hospital, it will not be a burden on the hospital. That is what one new initiative which is started. Just we have principally agreed and we will be going with that. Details has to be worked out. गवर्नमेंट हॉस्पिटल की बात की जाए तो वहाँ नर्सों की काफी कमी रहती है, तो उस कमी को पूरा करने के लिए फिर आप लोगों को क्या करना पड़ता है, कौन सी परेशानियां झेलनी पड़ती है, थोड़ी सी बताएंगे? Shortage of nurses. Yeah. Shortage of nurses is always a problem because our staffing pattern is still fixed on the 1991 norms. The complexity of healthcare has increased and the number of nurses required, like in any intensive care unit, we have to maintain 1:1 patient ratio, 1 patient, 1 nurse. But that is not possible in places because
that we have to count for the leave, the weekly off, and other leaves like long leaves like maternity. So there's always shortage of nurses which affects the patient. And added to that, existing vacancies are not filled. It takes long time. Then they appoint on contract basis or outsource, which there will be high turnover. This affects quality of nursing care or burden of nurses, because we are demanding to revise the staff pattern SIU norms of the central government, so that more vacancies can be created, so that the patient care will improve and the workload will improve. तो शॉर्टेज को पूरा करने के लिए आपकी एसोसिएशन काम कर रही है, शॉर्टेज को पूरा किया। शॉर्टेज नहीं है, अभी तक शॉर्टेज आउट नहीं हुआ है। हमारा ब्रांचेस पूरा कंट्री में हर स्टेट में है, एक ब्रांच है, उसमें एक बॉडी है विद प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी एंड 13 एग्जीक्यूटिव मेंबर्स। तो वो हर स्टेट का प्रॉब्लम पढ़ के जब हम कॉन्फ्रेंस में आते हैं, हमारा मीटिंग्स होते हैं, तो हर स्टेट अपना एजेंडा लेकर आते हैं, हमारा नर्सेस का क्या इश्यू है, क्या प्रॉब्लम्स है, वो सारे स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स डिस्कस करते हैं। फिर हम पॉइंट्स बनाते हैं कि उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। जो गवर्नमेंट को हमको रिकमेंडेशंस भेजना है भेजते हैं, और हम आस एसोसिएशन क्या क्या सोल्यूशंस निकाल सकते हैं निकालते हैं। तो ट्रेन नर्सों के साथ कुछ नए नर्स भी आते हैं हॉस्पिटल में, तो उनके साथ फिर आप लोगों को परेशानी होती है? परेशानी जरूर। हाँ, इसीलिए अभी डिसाइड भी हुआ। अभी हम लोग ट्रेनर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया में हमारा हेडक्वार्टर्स में और दिल्ली यूपी में हमारा एक सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग रिसर्च सेंटर है, वहाँ पर हाई फिलिलेशन सिमुलेशन लैब है। इसलिए अभी काउंसिल ने एक और विजिट करा है। अभी 5 रीजन में हाई फिलिलेशन सिमुलेशन लैब रखा है, सो दैट नर्सेस, नया नर्सेस हैं, उस लोगों को हैंड्स ऑन ट्रेनिंग देगी। अभी 4 साल का बीएससी नर्सिंग कर दिया, 3 साल का जनरल नर्सिंग कर दिया, 2 साल का एएनएम भी कर दिया, और एमएससी भी कर दिया, पीएचडी भी है हमारा नर्सिंग में, पोस्ट डॉक्टरेट वगैरह भी है। तो वो लोग का अभी हमको ये बीएससी नर्सिंग का, जीएनएम का और एएनएम का हैंड्स ऑन स्किल का जरूरत है, क्योंकि नर्सिंग इंस्टीट्यूशन अच्छा सा बढ़ गया, 3000 इंस्टीट्यूशन है, उसी का हमको पढ़ाई अच्छे सा हो रहा है। हमारा इंडियन करिकुलम इज वेरी बेस्ट है, इसलिए इंडियन नर्सेस सारा ग्लोबल में इंडियन नर्सेस को लेके जाने के मांग रहे हैं। अभी हम लोग एक कमी रियलाइज किया है, हैंड्स ऑन स्किल दे दो। सो इसी में दिल्ली में एक तरह के क्या करेगा, अभी 5 रीजन में लेके आना है। अभी एक रीजन पंजाब में लेके आने के लिए पहले हम लोग लास्ट टाइम हेल्थ मिनिस्टर के पास हम लोग बोला है, हमको आप लैंड दे दीजिए, हम हाई फिलिलेशन सिमुलेशन लैब लेके आएंगे। आई थिंक आने वाला में कॉन्फ्रेंस के हिसाब से वेरी सून हाई फिलिलेशन सिमुलेशन लैब आएगा। हैंड्स ऑन स्किल हम लोग कितना दे सकते हैं, हमारा स्टेट ब्रांच के साथ हम मिलजुल के आप वो करेंगी। ये अभी इमीडिएट प्लान है, विदिन 1 or 2 years में 5 रीजन में आएगा। फिर एक और भी लेके आ गया, अभी सारा ब्रांच में भी एक ऑफिस हेडक्वार्टर्स की तरफ एक छोटा एक ऑफिस भी होना है, एक फ्लोर में स्किल लैब होना है, क्योंकि 5 रीजन से हमको सारा नर्सेस को पढ़ा नहीं पाएगा। तो कहने का मतलब जो बीएससी करके आएंगे या एएनएम जो भी करके आएंगे, कोर्स करके आएंगे, उसके बाद फिर आप उनको ट्रेन करेंगे अपने हिसाब से, अपने साथ नहीं ट्रेनिंग नहीं, स्पेसिफिक स्किल्स जो है ना, जैसे कि सिंपल वर्ड में पेशेंट को, किसी भी इंसान को हार्ट अटैक हो जाता है, हार्ट अटैक बोल के नहीं आएगा, इट कैन बी एनीवेयर। सो आजकल में ये कहा जाता है कि ईच एंड एवरी पर्सन, चाहे वो हेल्थ केयर प्रोफेशनल है, चाहे एक रिक्शा पुलर है, हर किसी को पता होना चाहिए कि वो कंप्रेशंस कैसे देनी है। और बहुत बार ऐसा हुआ है कि इवन नर्सेस, हमारे ये हिमाचल की भी न्यूज़ है, पंजाब की भी न्यूज़ है कि नर्स उस बस में थी, ड्राइवर को हार्ट अटैक आया, फटाफट कंप्रेशंस दिया और वो उसकी लाइफ जो है उसकी सेव कर पाई। तो मैम का कहने का मतलब कि ऐसी वाली स्किल लैब्स जो है हमारे दिल्ली में भी है, एंड वी आर गोइंग टू हैव इन ऑल द स्टेट्स। ठीक है, टीआरए का मैं थोड़ा सा आपको बताती हूँ। मैं डॉक्टर सुखपाल हूँ, मैं प्रेसिडेंट हूँ यूटी ब्रांच चंडीगढ़। हर किसी स्टेट में एक प्रेसिडेंट है, सेक्रेटरी है और बाकी सारे ऑफिस बेरर, यूजुअली 13 होते हैं। सो ये हमारा प्रिविलेज है, हमारी छोटी सी ब्रांच है पीजीआई चंडीगढ़ सेक्टर 16 और 32 के नर्सिंग जो हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं और जो स्कूल और कॉलेजेस में काम कर रहे हैं वो मेंबर है उसके। तो छोटी सी ब्रांच ने ये रिक्वेस्ट किया कि वी वांट टू होस्ट दिस कॉन्फ्रेंस एंड वी आर होस्टिंग दिस कॉन्फ्रेंस। तो पिछला जो 3rd और 4th को था, इट्स ए मीटिंग
मीटिंग में प्रेसिडेंट सेक्रेटरी सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी के अराउंड 100 मेंबर्स ने पार्टिसिपेट किया। तो मैम ने जैसे बताया हर किसी स्टेट का जो इशू है दे विल बी ब्रिंगिंग और यहाँ पर बैठ के सब लोग सॉल्व करते हैं, फिर उसकी रिकमेंडेशंस बनती है, देन वी गिव इट टू द गवर्नमेंट या जिधर भी जाना है। कल इलेक्शन है, नेशनल इलेक्शन है और 6 और 7 को नेशनल लेवल की कॉन्फ्रेंस है इन विच वी आर एक्सपेक्टिंग अराउंड 2000 डेलीगेट्स। So 2000 trained nurses from all over India we are expecting in Chandigarh. So Chandigarh में once we started preparing this, we didn't get any of the institute या कोई hall हमें नहीं मिला जिधर हम 2000 nursing professionals को absorb कर पाए। Then we could find out जो मोहाली क्लब और इनको हमने request किया तो इन्होंने हमें host किया है। So we are really privileged to have this conference। हमारी खुशकिस्मती है कि हमें ये मौका मिला and we are trying our level best to give them the best host. So अगर आपने देखा ये 1908 की ये एसोसिएशन है and this association जो है largest association है इंडिया की and they are doing marvelous job। जो भी कहीं कुछ प्रॉब्लम है वो उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। So this is what I wanted to say। और कुछ क्वेश्चन है आपका, लोकल क्वेश्चन है, बाकी many of the issues सच में पहले ही बता दिए हैं और we are trying to handle those issues। I just wanted to say जैसे आपने सबसे पहले पूछा था कि ट्रेंड नर्सेज एसोसिएशन क्यों है इसका नाम, है ना, तो इट इज बिकॉज जिन्होंने डिप्लोमा किया है या जिन्होंने पीएचडी की डिग्री करी है दे आर रजिस्टर्ड विद द काउंसिल। एक होता है कि जैसे 2 महीने 3 महीने की ट्रेनिंग करी वो भी अपने आप को नर्स ही बोलते हैं, और जो ट्रेंड नर्सेज है दे आर नॉट ट्रेंड, है ना। जैसे कुछ प्राइवेट सेक्टर्स में नर्सेज प्रॉपर जो रजिस्टर्ड और जो पढ़ के आई है, जिनसे पढ़े लिखे लोग, सो इट इज लाइक यू विल सी दे हैव अंडरगॉन द ट्रेनिंग इधर 3 years और 4 years बीएससी। वो प्रोफेशनल्स हैं, उनकी केयर में भी प्रोफेशनल टच होता है। बट देन जो 2-3 महीने की ट्रेनिंग करके जैसे वॉलंटियर्स होते हैं, चलो नर्सिंग का थोड़ा बहुत काम कर लिया, वो भी अपने आप को नर्स बोलते हैं। सो दिस इज द लाइक ये जो एक स्टैंडर्ड बॉडी है, इट वर्क्स ऑन स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ नर्सिंग एंड प्रोफेशनल बॉडी है। ये वो वाली एसोसिएशन नहीं है, दे विल नेवर एनकरेज स्ट्राइक्स एंड वो ऐसे मतलब इकट्ठे हो जो यूनियन एक्टिविटीज बिल्कुल भी एनकरेज नहीं करते। टीएनआई इज वेरी वेरी प्रोफेशनल इन देयर एक्टिविटीज एंड द मेन थिंग इज दैट इज व्हाई ओनली ट्रेन्ड नर्सेज आर द मेंबर्स ऑफ टीएनआई। या उन्होंने डिप्लोमा किया है, जीएनएम किया, या उन्होंने बीएससी करी एंड फिर आगे एमएससी एंड पीएचडी, बिकॉज वी हैव पीएचडी इन नर्सिंग, पीजीआई में भी है, वी हैव आवर स्टूडेंट्स हु आर डूइंग पीएचडी इन नर्सिंग। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आप नर्स हो तो आप डॉक्टर कैसे हो, सो वी हैव डन डॉक्टरेट इन नर्सिंग एंड इट इज लाइक दैट इज व्हाई दे आर नोन एज ट्रेन्ड नर्सेस। हाँ, इसी की कंट्रीब्यूशन में, क्योंकि बहुत सारे आजकल ना सोसाइटी को पता ही नहीं है कि नर्सिंग में क्या हो रहा है। जैसे मैम ने बताया स्टार्ट होता है एएनएम प्रोग्राम से, उसके बाद है जीएनएम, देन बीएससी जो 4 साल का कोर्स होता है, एक पोस्ट बेसिक बीएससी होता है। जिन्होंने जीएनएम किया है उनको अपग्रेड करने के लिए 2 साल का कोर्स करना पड़ता है, तो वो पोस्ट बेसिक बीएससी हो जाता है। डिप्लोमा इससे ऐसे ही एमएससी है, एमएससी में हमारी अब सुपर स्पेशलाइजेशन है, जैसे कि एमएससी में मेडिकल सर्जिकल है जो एक मेजर ब्रांच है, ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनी है, कम्युनिटी हेल्थ है, मेंटल हेल्थ नर्सिंग है एंड क्रिटिकल केयर नर्सिंग, कार्डियोथोरेसिक, ऑन्कोलॉजी जो सुपर स्पेशलिटी है वो भी हमारे इंडिया में आ गई है और पीजीआई में हमारे फुल फ्लेज्ड कोर्स एमएससी एंड पीएचडी। और अनदर इंपॉर्टेंट प्रोग्राम जो अभी इंडिया में है दैट इज एनपीसीसी, ये है नर्स प्रैक्टिशनर इन क्रिटिकल केयर, ठीक है, 2 साल का प्रोग्राम है ये भी इंडियन नर्सिंग काउंसिल ने ही दिया है आफ्टर ग्रेजुएशन, हां जी, ठीक है, 2 इयर्स का प्रोग्राम स्ट्रीम और बीएससी और एमएससी, इट इज आफ्टर बीएससी साइंस पैटर्न और बीएससी इज ओनली आफ्टर साइंस +2 विद साइंस, ठीक है। जो पोस्ट बेसिक करते जिन्होंने जीएनएम किया होता है उनका +2 विद एनी स्ट्रीम, मेडिकल भी आ सकते हैं, आर्ट्स वाले भी आ सकते हैं, बट बीएससी 4 इयर्स का हमारा जो प्रोग्राम है दिस इज ओनली विद +2 विद मेडिकल सब्जेक्ट और साइंस सब्जेक्ट और एंट्रेंस टेस्ट होता है। जैसे हमारे पीजीआई का अपना एंट्रेंस टेस्ट होता है एंड वी गेट द कैंडिडेट फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया। और पीजीआई की अगर हम बात करें तो 99.9 पे हमारी सारी की सारी सीट्स खत्म हो जाती है। ऐसे ही बाबा फरीद यूनिवर्सिटी या पंजाब की उनका अपना टेस्ट होता है, स्टेट वाइज भी टेस्ट होता है, ठीक है। और ऐसे ही एमएससी का भी एंट्रेंस टेस्ट होता है, ऐसे ही पीएचडी भी है। तो एनपीसीसी की मैं बात कर रही थी, सिक्योरिटी बहुत है इसलिए पीपल आर ऑप्टिंग फॉर नर्सिंग नाउ, जो कि पहले कुछ साल पहले नहीं। तो अब कॉन्सेप्ट चेंज हो गया, अब लोग करते हैं बीएससी नर्सिंग बिकॉज
ग्रेजुएशन के बाद जॉब के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है सबको, बट अगर हम अपने बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट्स की बताएं तो इमीडिएटली पीजीआई में, आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट पीजीआई, दे अब्सॉर्ब ऑल द ग्रेजुएट स्टूडेंट्स इन द जॉब। तो 80,000 प्लस उनका स्टार्टिंग है आफ्टर ग्रेजुएशन। The salary is quite decent and so that is why अब opportunity तो है, ओवरसीज अपॉर्चुनिटीज, Overseas एक चीज जो मैंने बताना है, पोजीशन जो है अवेलेबल होनी चाहिए, ग्रेडिंग होनी चाहिए। और यहाँ पे टाइम बाउंड प्रमोशन दे दें, सबको एक इंसेंटिव मिलेगा, नहीं तो आप एक ही पोस्ट पर बैठे रहते हैं और कुछ लोग रिटायर भी हो जाते हैं। Thanks for watching. Please like, share and subscribe my channel.